नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक आर्ट एग्जीबिशन DSLA की तरफ से लगाया गया है। और आप देख सकते हैं यहां पर तमाम पेंटिंग्स मौजूद हैं जो कि कई दिग्गजों कलाकारों के द्वारा बनाई गई है। आपको बता दें यहां पर चीफ जस्टिस जो यहाँ के गेस्ट हैं, उदय उमेश ललित जी, यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं किस तरह की पेंटिंग्स मौजूद है। हाँ। Some of them are this is different for large for different events. So that one dot. So we had a function where we gave out dots on all the different color coding, and we are going to carry this dot. So this the kids started this program on 3rd of October. Second we were going to the young we covered the entire area of beginning of the meet, there is this one guy. That's okay. We had mapped that because so after this control, the number of calls we want 151 suddenly
So this is again one mega. The thought was handed over to DC Register with PM and CP. So with their assistance, with involving all the stakeholders, our panel members, they went in all the big areas, all the areas of गरीब और कमजोरों मुफ्त एवं सक्षम कानूनी But this is differently getting personal trust. We have included them in plans all the persons basically on category and class of persons. This is a journey towards inclusivity. With clients that This was very first conferred I have shared मुझे 2.5 किलोमीटर के लिए 5.5 चला खत्म नहीं होता Sir, again, सक्षम कानूनी सहायता ज्ञान सबके लिए Wheel of justice knows all these people. these again are different programs of different programs. So we have started with this program we have started in and those who are likely to be gained, we have done it to empower them and start with a Vedic Sahayak concept. So, Everyone. Good morning to everyone. Thank you all for being here today. We are very blessed and happy to have Honorable Mr. Justice V. Lalit, Judge Supreme Court of India, and Chairperson of the NALSA amongst us today. And we are grateful that he is here and he's inaugurated this exhibition of paintings and photographs. These paintings have been made by judicial officers, by paralegal volunteers, by advocates on the concept of access to justice. As you all must be aware, that in the light of the 75 years of our independence, we are celebrating the Amrit Mahotsav. The whole nation is doing that. And 1 week was dedicated for making aware people about legal services. But our Honorable Chairperson thought that 1 week is not enough, and so we started a good 7-week program. We kicked it off on the 2nd of October, on Mahatma Gandhi's birthday, which will culminate on the 14th of November. And this is the week that is dedicated for legal services under the Mahotsav that we are celebrating. And so we are very happy to have amongst us Justice Lalit. Thank you, sir, for being here. May I request
Honorable the Chief Justice, Justice Patel, to present a memento to Justice Lekha. Honorable Chief Justice of Delhi High Court, who is Patron in Chief for Delhi State Legal Services Authority. Honorable Justice Vipul Sanghi, Chairperson, Delhi State Legal Services Authority. Honorable Justice Siddharth Mridul, Chairperson, High Court Legal Services Committee. जैसे कि पीएलए से या नालसा दोनों इस तरह से काम कर रहे हैं, मेहनत से लगन से, सुबह मॉर्निंग में उठ करके आती हैं। तो सर हमने भी काफ़ी समय से इसमें क्या नाम है आप कवरेज कर रहे हैं और जो जनता को दिखा रहे हैं। तो सर इसमें आपको आज पहली बार हमारी आपसे मुलाकात हो रही है इस प्रोग्राम में, सर कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारा कैंपेन शुरू हुआ 2 अक्टूबर से आज करीब करीब 1 महीना तो हो चुका है और हमने लगभग 90% जितना भी कवर करना था वो तो पहले ही कवर कर चुके हैं। अभी कई सारे विलेजेस हैं जिसमें दोबारा तिबारा यानी तीसरी बार लोग जा रहे हैं। So the idea was to leave footprint at least thrice in this period of 45 days, and we will be completing that task and whatever the goal that we had set for ourselves. सर ये जो आर्ट एग्जीबिशन लगी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आर्ट एग्जीबिशन ऐसा होता है, कोई भी आर्टिस्ट जब कोई भी आर्ट तैयार करता है तो अपने इनर सोल को उसको प्रेजेंट करता है। दैट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ उसके इनर फीलिंग्स, इनर सोल का। और जो भी पेंटिंग्स ऐसे होते हैं, आप कई सारी चीज़ें बोल दो, प्रोज में 10-10 पन्ने लिख डालो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। बट अ वेरी सिंपल पिक्चर कैन कन्वे दोज इमोशंस सो वेल। और इसीलिए उसका महत्व होता है एक ही पिक्चर में लोगों की तरफ अपनी भावनाएं पेश करना। जो भी आप प्रोज लिखते हो, रिटन लिखते हो, उसमें भाषा का बंधन होता है, स्क्रिप्ट का बंधन होता है। कई लोग समझ सकते हैं, कई लोग आपकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक पिक्चर में उतनी ताकत होती है कि वो जो इजीली अपनी इमोशंस कन्वे करें, और इसलिए पिक्चर्स का महत्व ज़्यादा होता है। और इन शब्दों में अगर इन आइडियाज़ पे कुछ पिक्चर्स एग्जीबिशन हो तो बहुत सुंदर होता है। जैसा मैंने आपको बोला अभी नीचे कि पॉक्सो विक्टिम्स अगर अपनी इनर सेल्फ के बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ पोर्ट्रे करते हैं पिक्चर्स के बारे में, तो वो एक समाज के लिए एक उद्बोधन होता है, एक एक्चुअली सीख होती है वो। इसलिए इस वक्त हमारे साथ डालसा के मेंबर सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं आज जो एग्जीबिशन लगाया गया है उसके बारे में। देखिए, भारत का जो अमृत महोत्सव है, 75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और नालसा की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। दैट वाज अ 45 डेज़ लॉन्ग कैंपेन, जिसमें हमने लोगों को अवेयर करना था उनके राइट्स के बारे में। ये 2 अक्टूबर से ही हम अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे। और 2 अक्टूबर से लेके आज तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए, उनकी जितनी भी पिक्चर्स हैं, उनको शोकेस करना, ये अगेन दिस वाज एन इनिशिएटिव ऑफ नालसा। और आज से लीगल सर्विसेज वीक स्टार्ट हुआ है, विधिक सेवाएं सप्ताह। तो इसके चलते सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में हमने ये पेंटिंग्स जो लीगल सर्विसेज को डिपिक्ट करती हैं और पिक्चर्स जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको डिपिक्ट करते हुए ये एग्जीबिशन इनैक्ट की है, ताकि यहाँ जितने भी लोग विजिट करें कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वो इस चीज़ को देखें और जानें कि क्या स्टेट मशीनरी है जहाँ से उनको मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है। सर जैसे नालसा के बारे में लोग इतना पहले नहीं जानते थे, जब से आप नालसा के मेंबर्स बने हैं, जब से लोग बहुत जानने लगे। सर आज मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी आपकी तारीफ की। सर ऐसा क्या आपके हाथ में ये जादू है? सर थोड़ा जादू के बारे में जनता को बताइए। देखिए, ये एक कोई इंडिविजुअली खुद नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, और मैं इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय हमारी जो टीम है, जो इतने डेडिकेटेड हमारे सेक्रेटरीज़ हैं। ये हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी हैं नम्रता जी, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं गौतम आनंद जी, और जितने भी हमारे सेक्रेटरीज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज को हेड करते हैं,
क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना है, क्योंकि हर विलेज लेवल पे काम करना है, हर बस्ती लेवल पे काम करना है, तो वही ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं। हमारा काम है कि जो हमें डायरेक्शंस नालसा से मिली या जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन से मिली, उनको परकोलेट डाउन करें हम अपने सेक्रेटरीज़ को, और वो सेक्रेटरीज़ ने पूरी डिवोशन और डेडिकेशन के साथ इस काम को अंजाम दिया, जिसका आज हम ये रिज़ल्ट देख रहे हैं इन पिक्चर्स के माध्यम से, इन पेंटिंग्स के माध्यम से। और जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों में अब अवेयरनेस है, लोग जानते हैं अथॉरिटी के बारे में, लोग जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में, तो उसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मैं अपनी टीम को देना चाहता हूँ। सर जादू के बारे में पूछा था सर। ऐसा कौन सा जादू है जो हम मुझे भी, मेरी उम्र कम से कम 40 प्लस हो रही है, मैंने आज तक नालसा के ना प्रोग्राम देखे ना सुना, लेकिन अब मैं कंटिन्यू जिस दिन से इससे मुहिम से जुड़ा हूँ, मैं लगातार आपकी कवरेज कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ सर। देखिए, जैसा आप ये कह रहे हैं कि आपको ये कवर करके अच्छा लग रहा है, वैसा सिमिलरली मैं भी ये कहूँगा कि लोगों के बीच जाके, लोगों के साथ जाके, लोगों के साथ जुड़ के, उनके प्रॉब्लम्स को जान के और उनके सॉल्यूशंस ढूंढ के, उतना ही अच्छा हमें लगता है। और जितना अच्छा लगता है वो अंदर से आपको अपने आप से मोटिवेशन मिलती है टू डू बेटर, और ज़्यादा हम कर सकें। और इसी के चलते, और अगेन मेरी टीम जो हमेशा हमें पुश करती रहती है, येस वी कैन डू मोर बेटर, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यही एक इसका जादू है, यही एक दौड़ लगाना, बच्चों के साथ एंजॉय करना, सर ये तो एक बहुत अच्छा देखिए, संदेश है। ऐसा है कि अ, जो हमारा समाज है, इसमें अलग अलग क्लास और कैटेगरी के लोग हैं, उसमें बच्चे भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। तो अगर हम कोई चीज़ उनको कन्वे करना चाहते हैं, अगर हम बच्चों को कन्वे करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा अपना लेवल नीचे करना पड़ेगा, हमें उनके लेवल तक उतरना पड़ेगा, हमें उन स्टोरीज़ के माध्यम से उनको बताना पड़ेगा। जो बड़े लेवल के हैं उनको उस लेवल पे बात करनी पड़ेगी, और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम जब बच्चों को अवेयर कराएं, तो हम छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से, अच्छे अच्छे कार्टून्स के माध्यम से, या उनको थोड़ा सा जादू दिखा के अब कैप्चर करें, उनकी अटेंशन कैप्चर करें, और वो चीज़ बताएं जो हम उनको बताना चाहते हैं। सिमिलरली फीमेल्स हैं, तो उनके जितने भी राइट्स हैं या उनके जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं, उनके संबंधित जानकारी अगर हम उनको प्रोवाइड कराएं, तो उनको वो अच्छा लगेगा, और वो अधिक से अधिक जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग जो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनके अलग अलग इश्यूज़ हैं, तो उनको एड्रेस करने की कोशिश हमेशा हमारी रहती है। तो इसी के चलते हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। जनता की और अमन न्यूज़ की, अमन टाइम्स की और आपके दर्शकों की एक जादू और चलाना सर। आपने क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को तो आप लिया है सर, एक हमारे एक महामहिम और रह जाती है राष्ट्रपति सर, जनता के बीच में प्लीज़ उनके मिलाने की कोशिश, आपका जादू चलेगा सर। नहीं, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि, और ये जो कैंपेन है इसकी शुरुआत ही हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं इंडिया, उन्होंने ही की थी। विज्ञान भवन से 2 अक्टूबर को उन्होंने ही इस पूरे प्रोग्राम को किक स्टार्ट किया था, उन्होंने ही इसको फ्लैग ऑफ किया था। और 14 नवंबर जो इसकी कल्मिनेशन है, आई वोंट से कल्मिनेशन, इट इज़ अनदर बिगिनिंग। उसके बाद भी हम ये काम जारी रखेंगे, लेकिन 14 नवंबर का जो प्रोग्राम होगा उसमें भी हमारी कोशिश रहेगी, हम नालसा के साथ जुड़े हुए हैं कि उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो आएँ, शिरकत करें, और लोगों को और हम सबको, सारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ऑल इंडिया लेवल पे मोटिवेट करें, ताकि हम अच्छे काम करते रहें। थैंक यू। मैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप भाग भी रही हैं, दौड़ भी रही हैं, बच्चों के साथ दशहरा भी देख रही हैं, और मैम हमने देखा कि आप एंकरिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो मैम ज़रा सा एक छोटा सा संदेश जनता नालसा के लिए प्लीज़, और अमन न्यूज़ के लिए। सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अगर हम दिल से कुछ करते हैं तो वो चीज़ हमेशा बाहर हमारे चेहरे में, हमारे कामों में दिखती है, और वही एक चीज़ है जो हमारी पूरी टीम को गोइंग रखती है। हम लोगों तक जाते हैं तो एक वही चीज़ हमें मोटिवेट करती है, लोगों के चेहरों की वो स्माइल और उन तक पहुँचना, उनके दर्द बाँटना। और इसीलिए हम लोग जनता के बीच में जाके, जैसे सर ने भी कहा, हम बच्चों के साथ हँसते हैं, खेलते हैं, साइकिल रैलीज़, फुट रैलीज़, तो सिर्फ़ उसका रीज़न यही है कि हम दिल से फ़ील करते हैं और हम दिल से लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। मैम, यहाँ पे तस्वीर है, उसमें आपकी जो अभी तक की जो जर्नी रही है वो आपने दिखाई है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये जर्नी का। 2 अक्टूबर से हमने ये स्टार्ट करी थी और ये 14 नवंबर को कल्मिनेट हो रही है। इस पूरी जर्नी में हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, रूरल एरियाज़, विलेजेस और हर जगह गए हैं, बच्चों तक गए। ऐसे-ऐसे दिल्ली की जगहों पे गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिल रही थी। तो एक तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमारी भी बढ़ी, हम भी रोज़ कुछ ना कुछ सीख के घर पहुँचे अपने, जब हम कम्युनिटी में गए लोगों से मिलने के लिए। प्लस एक बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। जब रात को सोते हैं तो एक बहुत अच्छी नींद आती है ये सोच के कि आज ज़्यादा नहीं तो किसी 1 या 2 लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला पाए, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला पाए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर किस अलग-अलग तरह की जो कानून को लेकर हैं उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई और काफ़ी सारे कलाकारों ने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। यहाँ के जो चीफ गेस्ट थे आज के, उन्होंने भी कलाकारों की तारीफ की, उनका हौसला बढ़ाया। इसी के साथ मैं पल्लवी शर्मा विदा लेती हूँ। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।